भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयो दानं विशिष्यते। अर्थात जल से संसार के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं, अतः सभी दानों में जल का दान सर्वोत्तम माना जाता है। A very warm good morning to one and all present here. Today, we the students of Science Club have gathered here to present an assembly on World Water Week. Now, I would like to call Abhay Singh Mehra, who will brief you about World Water Week. World Water Week is the leading conference on global water issues, held every year since 1991. The week attracts a diverse mix of participants from many professional backgrounds and every corner of the world. Together we develop solutions to the planet's greatest water-related challenges, such as poverty, the climate crisis, and biodiversity loss. World Water Week is a conference for people who understand that tackling the greatest challenges of our life often starts with water. Now I would like to call Karthik Pandey, who will tell us why do we celebrate World Water Week. World Water Week held every year on 23rd August to 1st September every year. World Water Week is a place to explore new ways of managing water. Now I would like to call Ayush Dhami, Yagnik Sanwal and Daksh Tripathi, who will brief you about the theme of World Water Week for 2022. Water holds immense value in our lives. World Water Week is celebrated to promote the useful water and access to safe for everyone. World Water Week will be held on the theme Seeing the Unseen, the Value of Water, and is built on the global need to not only see but understand and more importantly value water. Seeing the Unseen, the Value of Water, with a focus on the diverse aspects of water, how others view and value water, and to help uncover water's full value to society. अब मैं मंच पर चंद्रेश सिंह खाती और सूरज बिष्ट को आमंत्रित करना चाहूँगा। पानी बचाने का करो जतन। पानी हम इंसानों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। पानी के बिना हम अपने दैनिक जीवन का पहल नहीं कर सकते। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए पानी आवश्यक है। पानी को बचाना और संरक्षित करना एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि पृथ्वी पर ताज़े पानी की मात्रा बहुत कम है। बारिश न होने के कारण पीने के पानी की मात्रा कम हो रही है, इसलिए सरकार सभी को पर्याप्त मात्रा में मीठे पानी की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कविता की कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। जल पृथ्वी का गहना है, जल ही अपना जीवन है, जल को हमें बचाना है, सुंदर भविष्य बनाना है, सुंदर भविष्य बनाना है। धन्यवाद। Now, I would like to call Mohammad Nizam and Lavish Prakash, who will tell us some amazing and interesting facts about water. Amazing and unknown facts about water. Over 90% of fresh water on Earth is located at Antarctica. There is more fresh water in the atmosphere than in all of the rivers on the planet combined. 10% of whom waste 90 gallons or more per day. Cold water is heavier than hot water. अब कुछ मज़ेदार तत्व हिंदी में। जल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में केवल 1% पानी की कमी हो जाने पर हमें प्यास लग जाती है। धरती की सभी नदियों की तुलना में कहीं अधिक पानी बादलों में मौजूद है। विश्व का 7% पानी जमा हुआ है और इस कारण इस्तेमाल किए जाने योग्य नहीं है। Now, I would like to call Tejas Bist, who will recite a Hindi poem. आज जल चक्र। जल है जीवन का आधार, जल को ना फेंको बेकार। जल से ही सब जीवन पाते, जल बिन जीवित ना रह पाते। जल को फिर क्यों व्यर्थ बहाते, बात सरल सी समझ ना पाते। सरल भाव अंबर में जाता, वर्ष धरती पर आता। मेघों के घर में भर जाता, धरती से अंबर तक जाता। यही निरंतर चलता रहता, यही जल चक्र कहलाता, यही जल चक्र कहलाता। धन्यवाद। To call Ayushman Pacholia, who will tell us about the importance of groundwater. Water. Making the invisible visible this year. The focus is on groundwater, an invisible resource with an impact visible everywhere. Groundwater is water found underground in aquifers, which are geological formations of rocks, sands and gravels that hold substantial quantities of water. Groundwater feeds springs, rivers, lakes and wetlands and seeps into oceans. Groundwater is recharged mainly from rains and snowfall infiltrating the ground. Groundwater can be extracted to the surface with the help of pumps and wells.
Life would not be possible without groundwater. Most areas of the world depend entirely on groundwater. Groundwater supplies a large proportion of water we use for drinking, sanitation, food production, and industrial processes. नाटक हमारे जीवन का आईना होता है। नुक्कड़ नाटक हमारे जीवन के छोटे बड़े विषयों को मंच पर प्रदर्शित करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो आइए आज इस विश्व जल सप्ताह के अवसर पर हम आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एक बूंद। मित्रों, आप सभी मैदान में आ जाओ। देखना है आज एक अनोखा खेल। आप सभी अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाओ। शुरू करते हैं आप सबका फेवरेट खेल। शुरू करते हैं क्रिकेट का खेल। ये आयुष ने फेंका बॉल और ये हर्ष ने घुमाया बैट। छोड़ा नहीं हर्ष ने मौका, जड़ दिया पहली बॉल पे चौका। ये आयुष ने फेंका दूसरा बॉल जरा जोश में आके, पर यह क्या, हर्ष ने मारा छक्का होश में आकर। कभी सिंगल, कभी डबल, कभी चौका, कभी छक्का। अरे सोचा ना था हर्ष की विकेट आयुष ही लेगा। हर्ष ने बनाए 70 रन, किया खुद का रिकॉर्ड ब्रेक। तो चलो इसी के साथ लेते हैं छोटा सा वाटर ब्रेक। मेरा तो प्यास के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या तुम सबका भी मेरे जैसा ही हाल है? हाँ, मुझे भी बहुत लगी है प्यास। चलो पानी पीकर बुझाते हैं अपनी प्यास। अरे मेरे पास तो पानी है ही नहीं। प्लीज मुझे कोई पिला दो एक प्याली पानी। अरे ये क्या, मेरे पास भी नहीं है पानी। कुछ भी कर लो, मुझे मेरी प्यास है बुझानी। मेरा पानी भी हो गया खत्म। क्यों हो रहा हम सब पर यह सितम? मेरे पास है पानी, यहाँ देखो, पर सिर्फ एक बूंद। मुझे दो। देखो आप सबको क्या हो गया है हाल। बिना पानी के हो गए हो तुम सारे बेहाल। हमें कितना, let us tell you। आज समझ तुम याद करो। ब्रश करते समय तुमने नल खुला था छोड़ा। तुम्हारी नासमझी के कारण मैं वेस्ट होता रहा थोड़ा थोड़ा। मुंह तो तुम्हारा हो जाता है साफ, पर क्या मिल पाएगा मुझे इंसाफ? याद करो, तुम याद करो। जब तुम्हें लगी थी थोड़ी सी प्यास, तुमने पानी से भर दिया पूरा ग्लास। पानी तो तुमने सिर्फ 2 सिप पिया और बचा हुआ सारा सिंक में वेस्ट कर दिया। याद करो, तुम याद करो। नहाने के लिए रोज करते शावर यूज, इसी कारण रोज हुआ है मेरा मिसयूज। शावर बात में किया है बहुत मजा, तो अब तैयार हो जाओ भुगतने को सजा। याद करो, तुम याद करो। जब पापा के साथ करने जाते थे तुम कार वॉश, यूज करते थे मुझे विथ फुल फोर्स। खेल खेल में मुझे उड़ाते रहे यहाँ वहाँ, तब तुमने मेरे लिए सोचा ही था कहाँ। याद करो, तुम याद करो। मन किया तुम्हें जब रिलैक्स होने का, भर दिया मुझसे पूरा का पूरा बाथटब। तुम सोचो जरा खुद को रखकर मेरी जगह, कितना वेस्ट किया मुझे बिना किसी वजह। याद करो, तुम याद करो। जब भी सर्वेंट आपके घर में बर्तन धोती, पूरा समय फुल नल खोलकर रख देती। तुमने भी तो उसे कभी नहीं समझाया, सिर्फ देखते रहे पर कभी नहीं सिखाया। याद करो, तुम याद करो। बलून में भर भर के फेंका मुझे जब भी आई होली। मत वेस्ट करो पानी, ये बात किसी ने नहीं बोली। अपनी ही मस्ती में मस्त बन खेल रही बच्चों की टोली। तुम्हारा मजा बनी मेरी सजा, इस बात ने किसी की आंखें नहीं खोली। याद करो, तुम याद करो। होली में मस्ती का छोड़ना नहीं है तुम्हें एक भी चांस, इसलिए तो हर सोसाइटी में होने लगा है रेन डांस। क्या इसके बिना नहीं हो सकती होली पूरी? क्या मुझे वेस्ट करना है जरूरी? याद करो, तुम याद करो। वेस्ट किया मुझे हर घड़ी हर पल। कभी ऐसे ही बहाकर तो कभी ऐसे ही खुले छोड़कर नल। मुझे वेस्ट करके समझते हो ग्रेट खुद को, और अब तरस रहे हो मेरी एक एक बूंद को। याद करो, तुम याद करो। आज जब तुमने यह बात बोल दी, सच कहे तुमने हमारी आंखें खोल दी। कर रहे थे हम कितनी बड़ी गलती, शायद इसकी सजा हमें बहुत बड़ी मिलती। वक्त नल खुला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस आदत को आज अभी से छोड़ेंगे, अभी से छोड़ेंगे, अभी से छोड़ेंगे। उतना ही लेंगे पानी जितना है पीना, जितना है पीना, जितना है पीना। इसी बात के साथ अब हमें है जीना, हमें है जीना, हमें है जीना। होली में पानी नहीं बहाएंगे, नहीं बहाएंगे, नहीं बहाएंगे। वाटर की वैल्यू हम सबको समझाएंगे, सबको समझाएंगे, सबको समझाएंगे।
कार वॉश करते पाइप से पानी नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, बाल्टी में भरकर पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे। बचाएंगे, बचाएंगे। बाथटब में नहाना ना रे ना, नो, नेवर, नेवर, नेवर। अब तो सिर्फ बकेट का यूज करना है फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। पानी की वैल्यू हम सर्वेंट को समझाएंगे, समझाएंगे, समझाएंगे। नल खुलाना छोड़कर पानी हम बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। तो देखा आप सभी ने हम किस प्रकार जाने अनजाने में प्रकृति के इस बहुमूल्य धन की निरंतर बर्बादी किए जा रहे हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, किंतु हम सभी अपने स्वार्थ हेतु निरंतर इसकी बर्बादी किए जा रहे हैं। तो साथियों, आज से ही यह प्रण करें कि पानी की एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं करें। मैं अपनी पंक्तियों को अंत में कुछ लाइनें कह के विराम देना चाहूँगा कि जल है जीवन का अमृत धारा, व्यर्थ के कामों में इसे ना बहाना। धन्यवाद।